Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Swa. Today I am going to start subject SPL of Standard 8, and this is second video lecture on the topic Understanding our Criminal Justice. Dear students, as we have discussed earlier, that how Santi, she got the decision of the court. But as we know, that as she has been just told by Mrs. Sinde that she has stolen the golden chain, but after the court and police, the matter it was aroused, and whenever it moves toward the court, then what was found that no, that Santi, she was just acquitted, okay, and police was also warned that there should be a investigation and the matter should be discussed well, and further the investigation should be there, that why she has been become the accused. Okay, so here the main things which I want to say here, that how it means we have to know that why if a police is came here, that we don't have to be fear, we have to listen and we have to face them, that why you came here, okay, and we have the rights. So police, they don't have the right that if you are in custody, then they will torture you, they will just abuse you, they can shoot you. These are not the rights. Today we are going to discuss about that. Okay, so the function of police is basically to investigate any complaints about the commission of a crime. Like investigation is a recording statement of witness and collecting different kind of evidences, है ना. evidences यानी कि साक्ष्य, जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ से साक्ष्य को जो है वो क्या करना, कलेक्ट करना. ठीक है. Therefore, police are required to form an opinion, and if the police think that evidence points are guilt of the accused person, यानी कि जो दोषी व्यक्ति है उसके पक्ष में जो है वो साक्ष्य मिला हुआ है, then they will file the charge sheet in the court. तब वो जो है मुकदमा कोर्ट में दायर करते हैं. At the stated beginning the chapter, it was not the police that who will decide that whether, ये जो है पुलिस का काम नहीं है कि वो इस चीज़ का निर्णय कर सके कि कौन सही है और कौन गलत है. ठीक है. As in this we'll came to know about the rule of law. It means everybody, whether they are the police, they are the commissioner, anyone, whether they are the leaders, even the leaders, they all have to brought in the court, because all are equal on the eye of law. Okay, so here the Supreme Court which have been laid the guidelines, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों में यह मेंशन किया गया है that the police must follow the at the time of arrest, detention यानी गिरफ्तारी के समय, पूछताछ के समय, and interrogation, है ना, यानी कि पुलिस are not allowed, basically they are not allowed to torture, beat or shoot anyone during investigation. इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है मारपीट या किसी तरह का बुरा बर्ताव करने का ये मेंशन किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. ऐसा होता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है. ठीक है. बेसिकली लेकिन ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमें अपने अधिकारों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है. अगर हमें अपने अधिकार पूरी तरह से मालूम होंगे तो ऐसा बहुत कम कर पाएंगे. राइट. सो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटीज एवरी अरेस्टेड पर्सन, यानी आर्टिकल 22 जो है ना, जैसा कि आर्टिकल 21 में मेंशन है राइट टू लाइफ, 22 में मेंशन किया गया है दैट अगर आप पुलिस की गिरफ्त में हैं तो इसमें से कुछ जो है गाइडलाइंस वो जारी किए गए हैं, और ये लिखित जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है. लाइक द राइट टू इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द ऑफेंस फॉर द विच पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, यानी कि अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो उसको इस समय बताना ज़रूरी है कि आपकी गिरफ्तारी किस
बिना पर हो रही है, ठीक है। दैट और कहता है कि विदिन 24 आवर्स ही और सी हैज़ टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, और 24 घंटे के अंदर जो है उसे जिला और सत्र न्यायालय में जो है वो न्यायाधीश के सामने पेश करना है, ठीक है। कहता है और उसके साथ इल ट्रीटेड भी नहीं करना है, नाइदर एनी टॉर्चर शुड बी डन विथ हिम, और ना ही उसके साथ मारपीट किया जाना चाहिए। कन्फेशन मेड इन पुलिस स्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, और जो भी स्वीकृति यानी दोषी के द्वारा जो भी स्वीकृति जो है जेल में लिया गया है वो क्या करते हैं, साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। अगर उसे पेश करना है तो वो जो दोषी है वो खुद चलकर जो है वो कोर्ट में इस चीज़ को बोलेगा, ठीक है। और कहता है कि अंडर 15 है ना, या 15 साल के नीचे, और अभी जो है 18 साल के नीचे के जो है वो पुलिस में जो है वो क्या कहते हैं कि थाने में बुलाकर जो है उसे पूछताछ नहीं किया जा सकता है ना। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट हैज़ बीन लेड सम ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रूल रेगुलेशन जारी किए गए हैं, है ना, दैट हैव बीन फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन। पूछताछ के समय जो है ये चीज़ें ज़्यादा लागू हो जाती है। दीज आर नोन एज DK बासु गाइडलाइंस, इसे हम लोग DK बासु गाइडलाइंस के नाम से भी जाने जाते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले में जो है वो DK बासु उन्होंने जो है अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोर्ट के सामने रखी, और जब कोर्ट ने इन चीज़ों को जो है मान लिया उसके बाद से ये चीज़ें DK बासु गाइडलाइंस के नाम से जानी जाने लगी। ओके राइट। द पुलिस ऑफिशियल्स यानी जो भी पुलिस जो है वो गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं, उनके नेम, बैचेस, उनके पद जो है वो साफ साफ उनके बैचेस में लिखे होने चाहिए, ठीक है। वो भी पूरे यूनिफॉर्म में होने चाहिए। वेन एवर दे आर गोइंग टू अरेस्ट एनीवन, कहता है कि अरेस्ट के समय जो है उन्हें जो है वो जो भी दोषी व्यक्ति है उसे पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका जो है वो सिग्नेचर भी, हस्ताक्षर भी होना चाहिए, तथा उसके साथ साथ एक गवाह जो है वो भी होना चाहिए और वो भी वहाँ पे हस्ताक्षर करता है, ठीक है। कहता है कि उसके यानी कि जिसकी गिरफ्तारी की जा रही है उसके दोस्त या सगे संबंधी को भी इस बारे में जानकारी होना चाहिए। कहता है कि अगर उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर लिया गया है तो 8 से 12 घंटे के भीतर उसके सगे संबंधी को जो है कॉल करके उसे सूचना देना बनता है। ये उस पर्टिकुलर थाने का काम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।